Hi everyone. Hi everyone. So it's been so long time I didn't came up with my live videos. So hi again. Jaldi jaldi aa jao sabhi. Hello. Hi. Hey Gitashri ba. Hi. কি খবৰ আপোনাৰ? Okay, hi. Hi. So like after winning मैं लाइव नहीं आई हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी थी. मैं आपको शेड्यूल बताती हूँ. जीतने के बाद मैं असम गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ. 10 दिन, मैं 10 से 15 दिन रही असम में. I was there for 10 to 15 days. So yeah, so I was really busy for my press conference days. So for what happened that वहाँ से मुझे suddenly call आ गया. Otherwise I was supposed to I was supposed to stay in Assam for few more days again, but emergency call आया था हैदराबाद के लिए. उसकी वजह से मुझे बैंगलोर वापस आना पड़ा. And here वापस काम. And इतना सब कुछ हो गया कि लाइव नहीं आ पाई, आप लोगों से मिल नहीं पाई हूँ. Hi. I can see so many people are missing me. Hi everyone. I hope everything is going well. सब कुछ अच्छा चल रहा है. कोई मुझे बता सकता है असम का कंडीशन, क्योंकि मैं असम से दूर रही, मुझे पता नहीं था. बट या मैं नेक्स्ट मंथ आ रही हूँ. मेरे कुछ प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से आई एम कमिंग नेक्स्ट मंथ. ऑन 5th I have a flight from here. Guys, may you get all the success in your life. Thank you so much. Thank you so much, Gitaba. Okay, listen, I have to clear a few more things with you. As I can see that many people have waited for my live video. Because क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं बीच में हमेशा एक बार आके बात करती हूँ आपसे. I'm sorry, Miss Omar Raja, I am not going to speak in Bodo right now because the people whoever are seeing me, they're from outside also, and I want them to understand my language. So I don't want that only Bodo people should understand my language. I want that everybody should understand my language. Okay? So I'm really sorry about that. I cannot fulfill your wish, whatever you do. So I hope you don't mind. So कुछ चीज़ें मुझे क्लियर करनी है. दिल पे मत रखना, बट ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, स्पेसिफिकली हमारे लड़कियों की वजह से. मतलब हमारी लड़कियों के लिए एक्चुअली. तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी. आई वॉज रियली अवे फ्रॉम द फेसबुक स्टफ. लाइक बहुत दिनों से मैं दूर रही थी. आई वॉज अवे फ्रॉम सोशल मीडिया. आई जस्ट अपलोडेड फ्यू. अभी तक विनर पिक्चर्स मैंने अपलोड नहीं करे, बट आई विल अपलोड देम सून. सो whenever I used to get time, I was there online on Instagram, and I did Insta posting. I went live over there also, and एक promotion भी करना था, but नहीं हो पाया because I was really busy with my stuff. I'm moving from here, there are a lot. I traveled a lot in these days, and these days I traveled Mumbai, Chennai, everywhere. So again back to Bangalore right now, and then next month I'm coming again to Assam. So बात ऐसी है कि मैंने कुछ चीज़ें देखी फेसबुक में. बीच में मैं ऑनलाइन थी, तो मुझे कुछ दिखी. जैसे कि एक वीडियो मुझे मिला था जहाँ पे क्या हुआ था कि बोडो से आया था, क्या मेरे ट्राइब से आया था वीडियो एक्चुअली. सो वहाँ पे एक वीडियो बनी थी रिलेटेड टू ड्रेस. मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल अटायर है, दोखोना, जो मेरा ट्रेडिशनल अटायर है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू वन थिंग. Whatever I wear, जो भी मैं पहनती हूँ, like I have worn many clothes, different designers का different clothes मैंने सारे के सारे पहने हैं. So
हर चीज में खुद को मैंने अलग देखा है, विच इज माई ड्यूटी, जो मुझे दिखाना चाहिए। तो ये सब मेरा काम है। लेकिन जब भी मैं दोखुना पहनती हूँ, whenever I wear दोखुना, I feel that is my, that is the most beautiful attire which I am wearing, and it makes me feel pretty although. Okay, your voice is not so audible now. Okay, किसी को voice से कुछ problem हो रहा है क्या? Like let me know in the comment section below. Okay, so fine. I think it's okay now. So let us continue. तो बात ऐसी थी कि एक वीडियो निकली थी जहां पे मैंने देखा था, एंड वन मोर थिंग, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी प्लस विथ इंग्लिश सो दैट एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड दैट, ओके। और माइंड मत करना, प्लस हैशटैग स्पीक इन बोरो वाले लोग प्लीज माइंड मत करना, क्योंकि आप लोग समझोगे ये इट्स नॉट फेयर, राइट? आई वॉन्ट एवरीबडी। सो अभी बात ऐसी है कि उस वीडियो में मैंने देखा था कि लड़कियों पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था उसके कपड़ों को लेके। एक सीनियर पर्सन ने कमेंट किया था कि मुझे तो अच्छे नहीं लगते हैं, मैं जब वो लोग झुकते हैं तो वो लोग के सारे कपड़े दिख जाते हैं, वो लोग कुछ भी करते हैं वो लोग दिख जाते हैं, मुझे पसंद नहीं, वो लोग ये पहन रहे वो पहन रहे, हमारे जो कपड़े हैं, जो ड्रेस है ट्रेडिशनल, उसको पहनते ही नहीं, उसको खरीदते नहीं। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ अंकल आपको, आई नो कि आपकी जो ये परसेप्शन है वो सच है। I think nowadays youngsters are going more into modernism, like compared than traditional. But ये उनको भी पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं बोल सकते हो डायरेक्ट कि they are completely going into modernism and wearing short clothes. Let me clear you one thing. किसी का कोई भी राइट नहीं है किसी के कपड़ों के बारे में बोलने के लिए। हमेशा लड़कियों ने झेला हर चीज के लिए, लेकिन मैं बता दूं, आई एम इनटू द नेशनल पोजीशन नाउ, और यहाँ पे आके मैं जानती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। सो ये चीज लड़कियों के कपड़ों के बारे में कोई कमेंट ना करे, मैं बहुत ही रिक्वेस्ट करती हूँ, दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ। सब लोग एजुकेटेड है आज की दुनिया में, सब लोग एजुकेटेड है, सब लोग सभी चीज में आगे बढ़ रहे हैं। इतनी छोटी सोच लेके क्यों हो आप लोग? अच्छा, कोई फंक्शन होता है, कोई इवेंट होता है हमारे उधर असम में, क्या बोरो लड़कियां दोखुना नहीं पहनती? ऑब्वियसली पहनती है। तो क्या वो लोग ट्रेडिशन फॉलो नहीं करती? ऑब्वियसली करती है। सो हर दिन वो लोग नहीं पहन सकती, ऐसा कुछ उनका होगा, बिकॉज वो लोग यंगस्टर्स है, कुछ हो सकता है ऐसी चीजें। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, उन्होंने दोखुना नहीं पहना, उन्होंने कुछ और अटायर पहना, आप क्या कर रहे हो? टेल मी व्हाट यू गाइज आर डूइंग। यू गाइज आर वेयरिंग व्हाट? शर्ट पैंट। शर्ट पैंट हमारा अटायर है, शर्ट पैंट हमारे बोडोलैंड का कपड़ा है? बिल्कुल नहीं, वो तो हमारा अटायर नहीं। आप क्यों पहन रहे हो? इफ वी हैव टू कंटिन्यू आवर ट्रेडिशन, व्हाट यू गाइज वर डूइंग? नहीं, आप लोग को भी पहनना चाहिए। अगर इतना हैशटैग प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को इन सब चीजों से, प्लीज आंसर मी रिगार्डिंग दैट। आई रियली वांटेड टू नो। तब आप बोलोगे नहीं कि हम लोग ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग मॉडर्निज्म को लेके जा रहे हैं। तो लड़कियां क्या करिए? लड़कियां भी तो वही फॉलो करिए। तो उसमें इतना इश्यू बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। यू शुड नॉट हैव मेक दैट मच ऑफ इश्यू इन दैट सिंपल पॉइंट। और एक चीज, मुझे पता है कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत लोग मुझे नापसंद करने वाले। यू आर फ्री टू डू दैट, ब्लॉक करो, कुछ भी करो, आई डोंट केयर, बिकॉज मैं नहीं चाहती ऐसे लोग मेरे वीडियो देखे जो बिल्कुल सोच से बहुत ज्यादा नीचे है। आई वॉन्ट दैट पीपल्स टू बी हियर जिनकी सोच बहुत अच्छी और बहुत ऊंची है, जो हमेशा ऊपर की सोचते हैं। मैं एक बात बता दूं, मेरे लड़कियों के बारे में, बोडोलैंड की जितनी भी लड़कियों के बारे में ऐसी वाहियात बातें मत कीजिए आप, ठीक है? मैं समझ गई कि हाँ। और एक चीज है, किसी ने बहुत कुछ बोला है कि हमारे जो अटायर है वो एक्चुअली उसको चेंज किया गया है। पहले के टाइम पे हम लोग हाथों से कपड़े बनाते थे और आजकल मशीन यूज हो रहे। हाँ, आप लोग उस बारे में चर्चा करो, उस बारे में बातें करो। वो हमारे कपड़ा नहीं है, वो हमारा कपड़ा नहीं, उसको जला दे गया, बहुत अच्छा किया, उस बारे में आप लोग बात करो।
लेकिन लड़कियों के कपड़ों के बारे में आप लोग क्यों बात कर रहे हो? वो लोग तो ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं. इवन मैं जिस कॉलेज में पढ़ रही थी, I studied and I have done my graduation in this one, Kokraji Government College. Okay, I've studied there. Over there, what girls used to wear, dokhona, whoever is Boro, whoever are from Boro community, they are wearing Boro, dokhona. So आप सोचो, हम लोग फॉलो करें, और जो लड़के बोरो है वो लोग क्या पहन रहे? शर्ट और पैंट. कहाँ गया आपका संस्कृति? कहाँ गए आपके संस्कृति? मुझे बताओ. नहीं है तो आपका क्या हक बनता है लड़कियों के ऊपर ऐसा बात करने के लिए? What right you have? Tell me, what right you have? You have no right to speak about girls. You have no right to speak about any clothes. हमारी मर्जी, कुछ भी पहनेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन लिमिट क्रॉस नहीं करते. याद रखना, लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं. And I really request you girls, जितनी भी लड़कियां हैं, प्लीज बर्दाश्त मत करो. झेलते क्यों हो? Speak up. If you are staying silent, somebody else will dominate you. And I know that तुम लोग गलत नहीं कर रहे हो. I can see none of you are doing any wrong stuffs. So why you people are staying silent? Why you people are getting dominated? Because you are not speaking up. You should have speak up that no, we are not doing anything. We are just wearing what is a modern clothes, and that's it. We are not disrespecting our tradition. We are not disrespecting our clothes. If it does, then you are too doing that. You are wearing shirt and pant. You are wearing this one modern wala clothes. You are not in gamsa and this one, because the clothes we our what to say, the clothes that we my tradition male people used to wear, that is actually gamsa. You people are not wearing and roaming that, and when it comes to wear, you feel shy. But look at us. We are carrying that very properly. We are carrying that very properly, openly and charmly. We are showing, yes, this is my tradition. Then what the hell is your problem? What the hell is your problem to say like that? What the hell is your problem to speak up like that? Huh? I'm really sorry to burst out in this way, because I have no mood to speak it up like that. But किसी चीजों में बहुत गुस्सा आता है. Honestly saying, किसी चीजों में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है. If you guys will not understand, who the hell will understand? Tell me. एक आदमी ही काफी है पूरे एनवायरमेंट को गंदा करने के लिए. और एक बात, आज every time I used to upload on Instagram, actually most of my pictures, most of my official pictures. So yeah, you people have known that I am doing modeling. Modeling में बिकिनी शूट इज वेरी कंपल्सरी, वेरी कंपल्सरी. अरे कुछ है ही नहीं उस चीज में. सो मैंने सिर्फ पहली बार आज एक अपलोड करा था फेसबुक पे. सो उस पिक्चर को लेके पॉजिटिव कमेंट्स तो बहुत सारे आए. यू कैन से 70% कमेंट्स वेर द पॉजिटिव कमेंट्स, बट 30% इतने वाहियात कमेंट्स थे. मतलब शर्म आ गई मेरे को देख के, शर्म आ गया. आई रियली फेल्ट वेरी बैड, एंड ऑल ऑफ देम वेर फ्रॉम माई कम्युनिटी. कोई बाहर से नहीं था, सिर्फ मेरे बोरो से थे. मैं यहां पे बाहर रिप्रेजेंट कर रही हूं किसको? अपने ट्राइब को, कि देखो हम लोग किसी भी चीज में कम नहीं है. हम लोग किसी भी चीज में लाइक डोमिनेट नहीं. हम सब चीज में आगे है. दो आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कोकराझार, असम, नॉर्थ ईस्ट, विच इज अ वेरी स्मॉल एरिया. आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम दैट प्लेस. I have my born and brought up place is that, okay, but still I made my courage to come here, and today I have a flat in Bangalore. I am staying here. हक से हूँ, अपने हिसाब से हूँ. अगर वैसी सोच होती ना तो मैं वही के वही रह जाती. मुझे पता है मैं लिमिट क्रॉस नहीं करती हूँ. सो आप लोगों का कोई हक नहीं है मेरे किसी भी चीजों के बारे में बोलने की. And if you people wanted to speak like that, you can get lost from here. You are free to block me. You are free to get lost from my friend list. I don't want this type of fan followers in my life. I want a people who really love me from their heart. मैं चाहती हूँ लोग मुझे दिल से प्यार करें. मैं ये नहीं चाहती कोई दिखावा करे, वैसा लुक्स के लिए तो कोई भी आ जाएगा. मैं बिल्कुल वैसा नहीं चाहती. If you are thinking like that, you are free to go. You are free to move from here. Because मैं ऐसे fan followers लाइफ में चाहती नहीं हूँ. I want a real fan followers in my life who can give me love truly by their heart. And I know my stuffs are very important, and I know what I am doing, and I know my limit as well.
रियली सॉरी बट दिस इज फैक्ट यार। जो लोग बोलते हैं, मुझे पता है कि सारे के सारे वैसा नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज मेरे जगह में एजुकेटेड लोग हैं, बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, और उनकी वैसी थॉट नहीं है। बट समझ में नहीं आता बीच बीच में कहाँ से वैसे चीप थिंकिंग वाले लोग आ जाते हैं, समझ में नहीं आता। और यहाँ पे भी मैं देख सकती हूँ किसी कोई लाइक सारे के सारे तो मुझे बोल रहे कि हाँ अच्छी बोल रही, लेकिन एक दो कमेंट में देख रही हूँ जहां पे बोला जा रहा है कि आप ज्यादा बोल रहे हो, वो बोल रहे हो। क्यों ना ज्यादा बोलूं? आप लोगों ने ज्यादा नहीं किया है। ट्रेडिशन को फॉलो करने अच्छे से फॉलो करो। लड़कियों पे इतना जोर क्यों डाल रहे हो? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। क्यों क्या कर दिया? सिर्फ जीन्स एंड टॉप पहनने में आपकी इतनी हवा टाइट होगी? किस चीज के लिए? कौन सा गुनाह कर दिया? ट्रेडिशन तो फॉलो करें। आप उनके घर में जाओगे, उनकी मम्मी पापा सब ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। मेरे घर में भी मेरी मम्मी पापा ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, मेरे चाचा चाची सब ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। देन हु द हेक आर यू टू स्पीक अबाउट दैट? हु द हेक आर यू से कि बोरो अपग्रेड होना चाहिए। कैसे अपग्रेड होगा? ऐसी मेंटेलिटी से कैसे अपग्रेड होगा? कैसे सोच बढ़ेगा? समझ में नहीं आता यार। लाइक थोड़ा तो सोचो। लाइक अपने आप को उन लड़कियों की जगह रख के सोचो कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। दोखुना के केस में जो आप लोगों ने किया, वो जो बनावटी दोखुना जो मशीन से बनाया उसको जला दिया। आई एम रियली वेरी हैप्पी, वेरी नाइस। दैट इज नॉट आवर ट्रेडिशन, तो उसको पहनने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है फाइन। लेकिन लड़कियों को ऐसा कमेंट देने से पहले एक बार सोच लेते ना कि झुक गए सब दिख रहे। वैसा तो मत बोलो। आजकल दोखुना नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? कोई भी ओकेशन हो पहनते। आप लोग भी तो ओकेशन में गामसा पहनते हो, हर दिन तो गामसा नहीं पहनते, तो क्यों लड़कियां सिर्फ फॉलो करें? इन एवरीथिंग स्कूल में भी एक हमको स्टडी कराया जाता है दैट मेल फीमेल दोनों चीजें इक्वली होना चाहिए, उनका राइट इक्वली है। तो रियल लाइफ में ऐसा क्यों? लिसन, I know I don't have any right to speak like that, but few things are there which is very unbearable और बर्दाश्त के बाहर है। एक्चुअली बर्दाश्त के बहुत ज्यादा बाहर है। मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हूँ मैं कि अपने ट्राइब को अपग्रेड कर सकूँ। लोग people often used to ask me, where are you from? You look so cute. You look like a Northeast. You look like a mixture from outside country, China हो जाए, Japan हो जाए. But the way you speak, the way you present yourself, your personality is very sharp. तब मैं बोलती हूँ that I am proudly belonging from my own tribe, Boro tribe. सोचो कितना कुछ नहीं कर रही मैं आप लोग के लिए, तो आप लोग छोटी छोटी चीजें लेके वहां पे झगड़ा क्यों कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता यार। जिस चीजों में आप लोग कर सको, जिस चीजों में आप लोग मुकदमा कर सकते हो वहां पे करो यार। बेकार चीजों में क्या इतना झगड़ा करना? क्या छोटी छोटी बातों को लेके लड़कियों को डोमिनेट करना? क्यों होंगे लड़कियां डोमिनेट? आप कौन होते हो डोमिनेट करने वाले? हाँ, आप होते कौन हो डोमिनेट करने वाले? थोड़े लिमिट में रह के बात करेंगे। हाँ, थोड़े लिमिट में रह के बात करेंगे। आज मैं जहां पे रहती हूँ, सराउंड ऑफ मी आई डोंट हैव मच नॉर्थ ईस्ट मेंबर्स। एक्चुअली बोरो तो दूर की बात है, नॉर्थ ईस्ट मेंबर्स ही बहुत ज्यादा कम है। सो वी ऑफन यूज्ड टू डिस्कस अबाउट ईच अदर्स ट्राइब। सो लास्ट टाइम क्वीन यूनिवर्स के टाइम पे इन लोगों ने मुझे हमारे हंगर स्ट्राइक के बारे में बोला था, तो मैंने उनसे बेशक डिस्कस करी थी। या वी वांटेड सेपरेट स्टेट एंड आई रियली फील वेरी पीटी फॉर माय ओन ट्राइब। दे सेट फॉर हंगर स्ट्राइक। They were starving themselves just to make separate, just to get a state separately. I was really pity. I really felt pity for saying all of those things. So मुझे बहुत बुरा लग गया था, and we really went very deeply in the conversation. So by that time, they were like, I can understand from where you are belonging. So and they really respect me a lot. यहाँ पे कोई भी मुझे डोमिनेट तो दूर, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करते, कभी नहीं करते हैं। They see me as my level. Now that I'm an international title holder, Queen Universe, सब लोग मुझे उस नजर से देखते। कोई भी मुझे उस नजर से नहीं देखता, बुरा नजर से नहीं देखता मैं कहाँ से हूँ कहाँ से नहीं हूँ। और मुझे
मैं प्राउड फील करती हूँ अपने कोकराझार को रिप्रेजेंट करने में। अब तक मैंने बहुत बार रिप्रेजेंट कर लिया, तो आप लोग क्यों ऐसा काम करते हो यार? दिस इज माई रियली हम्बल रिक्वेस्ट टू माई ओन ट्राइब पीपल, स्पेसिफिकली आई एम स्पीकिंग अबाउट बॉयज। Whoever are spreading rumors, गंदी गंदी जो बातें फैला रही हो, प्लीज बंद कर दो, because people like us, we don't like to see this type of nonsense stuff. Upgrade yourself, go to school, go to college, get a proper education, and just upgrade yourself. पढ़ो कि लड़की और लड़कों में कोई डिफरेंस नहीं होता। जिस दिन ये समझ गए ना कि लड़की लड़कों में कोई डिफरेंस नहीं होता, उस दिन पता चलेगा क्या करते हो क्या नहीं करते हो। जिस चीजों में पॉइंट उठाने की जरूरत है उसमें उठाओ, बेकार चीजों में, लड़कियों के कपड़ों में मत जाओ। लड़कियों के कपड़ों में पॉइंट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए उनकी फैमिली है, उनके लिए उनका सब कुछ, उनके नोन पीपल्स है, आपको जरूरत नहीं है। यू जस्ट केयर अबाउट योर फैमिली। ओके फाइन, आई होप आई एम डन। सो इसके बाद अगर किसी को बुरा लगे, बेशक गाली दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग की गाली से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू हेट मी, यू लव मी, आई स्टिल शाइन, क्योंकि मैं अपने काम की वजह से, किसी के पोजीशन की वजह से नहीं, ये भी याद रखना। मैं काम अपने लीगली करती हूँ, हर चीज में करती हूँ, और मुझे जो अपलोड करना होगा मैं करूंगी, क्योंकि वो मेरे सारे लीगल प्रोसीजर है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लीगल? लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन से होके, सब सिग्नेचर से होके सब कुछ जाता है, दैट इज व्हाट लीगल। और वो एकदम कोर्ट के पेपर्स होते हैं, वो लीगल है। सो अगर कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम है उसमें? सो आइंदा से ऐसी वाहियात बातें मत करना। मेरी जैसी लड़कियां जो अभी भी वहां पे स्ट्रगल कर रही है असम में, उनको बहुत बुरा लगता है, उनको बहुत दुख होता है। जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू स्पीक अप, उनको लगता है कि रेपुटेशन पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि अभी वो लोग बन रहे हैं, और उस टाइम पे अगर किसी ने उनको डोमिनेट किया, बहुत बुरा लगेगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज, आई रियली मेकिंग अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डोंट डू दिस टाइप ऑफ स्टफ। वी रियली यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ हर्ट। हमको बहुत बुरा लगता है, और मुझे ये सारी चीजें देख के बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि वो लोग, मेरी लड़कियां क्या फेस कर रही है, जबकि मुझे पता है कि उनकी कोई गलती नहीं है। अगर कपड़ों की बात होती तो आप लोग क्यों नहीं पहनते हो 24 आप लोग क्यों नहीं पहनते हो? आप लोग भी कभी कभी पहनते हो ना, तो क्या गलत हो गया? लड़कियां कभी कभी दुखना पहन ली तो अपने मर्जी में रहेगी। पहले के जमाने में होता था, पहले के जमाने में तो लड़के भी पहनते थे गामसा हर 24 आवर्स, तब तो प्रॉब्लम नहीं था। तो अभी तो आप लोग नहीं पहनते हो, तो लड़कियां, व्हाई यू वांट गर्ल टू बी वेयरिंग दोखोना एवरी टाइम? व्हाई? नहीं ना, प्लीज। और जिसको गाली देना है, दफा हो जाओ, ब्लॉक कर दो, निकल जाओ, आप लोग की जरूरत नहीं है। मेरे फ्रेंड लिस्ट में वही लोग रहेंगे जो मेंटली मैच्योर्ड हो और अंडरस्टैंडिंग उनकी रहे, ठीक है? और जिनको फॉलो करना है करे, नहीं करना है मत करो। आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग एनीबडी, बिकॉज मैं हमेशा सच्चाई की साथ देती हूँ, आज भी दूंगी। गलत है तो गलत है, मैं किसी भी गलत चीजों को साथ नहीं देती। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर listening, and I can see a lot of comments. मैं बाद में पढ़ लूंगी, कि अभी तो बहुत आ रही है कमेंट्स, तो मुझे पढ़ा नहीं जा रहा है। And I can see 207 online over here. I'm really thankful कि you guys have always supported me. Without of your support, I have never came. This won't be possible कि यहाँ तक मैं आ जाऊँ, but ये हो चुका है और आगे बढ़ती जाऊंगी। एंड दिस टाइम आई एम गोइंग फॉर अगेन इंटरनेशनल इन फ्यूचर, मैंने सोच के रखा, और इसी की वजह से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, हर चीज में प्रिपरेशन कर रही हूँ। और प्लस अ मैसेज टू फ्यू गर्ल्स, अगर किसी को मॉडलिंग लाइन में आना है, कुछ अगर कंफ्यूजन हो, डाउट हो, आप बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? सो विदाउट एनी कंफ्यूजन आई एम सेइंग बाय बाय। और आइंदा से ध्यान रखना, ये गाली नहीं है, दिस इज नॉट गाली, बट दिस इज अ इंसल्ट जो हम लड़कियों ने झेला है और जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। जो मैंने फेस किया है, सारी लड़कियों ने फेस किया है। अगर लड़कियों ने अगर ये चीज फेस नहीं करी, उनसे जाके पूछो, करी है ना? आपकी भी बहन ने करी होगी जो आप कर रहे हो। थैंक यू सो मच।